Hello students, how are you? I am fine. Okay, welcome to my physics channel, Kajal Kassar. Okay, today we will read some concept about Newton laws of motions and circular motions and frictional motions. Okay, how these three chapters point in a problem. We will discuss some problem. Okay, first problem is here. In a pulley system, already we know if this mass is m1 and if this mass is m2 and if this pulley is massless, okay, and frictionless. Suppose this pulley is massless, m equal to 0 or nu equals to 0. Then we find the tension in the string. Everyone know it, T equal to 2 m1 m2 into G divided by m1 plus m2. Already we know it. Okay. But now friction not equal to 0. Mass may be 0, but friction not equals to 0. It may be 0, pulley or this is string, mass is 0. But friction not equals to 0. In that time, how can you find this tension? This tension, if m not equal to 0 or mu not equal to 0. That is the case. If m equal to 0, then moment of inertia will be 0. In that time, it will be contradicted that torque equals to 0, T1 equals to T2, many possibilities. So I just take m not equal to 0 and mu not equal to 0. Friction भी है और mass भी है, दोनों ही है पुली में, पुली का साथ जो स्ट्रिंग है, ठीक है? तो how can you find the tension? In that time, you have to take this tension is T1 and this tension is T2, because tension will be different. Because in that case, friction will act because when this rope slips over the pulley, and we know friction opposes the relative motions between two contact surfaces. So when this rope slips over the pulley, in the time between the rope and the pulley, there must be some frictional force, and that frictional force change the magnitude of the tension. Maybe it's helpful for T1 or maybe it's helpful for T2. That means that frictional force differ the tension. So tension T1 and T2 are not equal in that case. Okay, and we find how the tension depends on the function of theta or function of mu. Theta means the angles suppose rotates by the pulley by an angle theta, or mu means coefficient of friction. So we just find tension as a function of theta or tension as a function of mu. Maybe. Or maybe the double functions, function of theta or mu. Or maybe t equals to function of theta. It may be a variable of two double variable. Okay, ये भी हो सकता है, दोनों के साथ भी इसका ठीक परिवर्तन हम देख सकते हैं. वही हम दिखाएंगे. कैसे देखेंगे इसको? इसके लिए क्या करना है बेटा? पहले थोड़ा सा लेंथ लेके हम इसको टैकल करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा लेंथ, मतलब ये जो पुली का है ना, ये पुली का इतना सा लेंथ लेंगे, इतना सा दे लेंगे, ऐसे इसको हम बड़ा करके लिख रहे हैं. We just give this, it is very delta L element, and we just show here figure too much large by manifested this DL element. It is suppose it is the delta L element. This delta element is here delta element, okay, and this delta element experience the tension here and also experience the tension here. There are two tension, okay, here T and T1 and T2. Maybe this is T or T plus delta T, or this may be T or T plus delta. Which will be greater tensions? Which will be greater? Suppose this tension act here. Suppose this pulley, suppose this body M2 moves downwards and M1 moves upward. Then this tension should be greater than this tension, because this T and this T, T2 and T1, and friction oppose this motion. So suppose that is the T1, T2, and that is the T1, and that is the friction. So which will be greater? T2 must be greater than T1. So if you take T1 as the T, then T2 will be T plus delta T, something extra, because you take a small delta element. So you can take the tension also T plus delta T as variable. Okay, as you take delta
So you increase the tension by delta F. ऐसा ही हम लेंगे छोटा लिया तो छोटा सा टेंशन हम उसको इंक्रीज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम टी जब पकड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे? इफ यू टेक इट इज टी then it is t plus delta t. Okay, now we will draw a free body diagram. Okay, we divide this tension into two components. This is t plus delta t and this is t. Okay, clear? T plus delta t and t. इसमें तो कोई confusion नहीं है बेटा? Is it clear? I hope it is clear. Now, if suppose this delta L experience delta L, okay, delta L produce angle delta theta at the center of the pulley. So delta theta, and if you symmetrically divide this theta into two components, this is delta theta. So this should be delta theta by 2, and this should be delta theta by 2. And this is the component, and here, and this is the component, and this is here. Okay. So if it is delta theta by 2, this is delta by this plus this 90, this plus this 90. So this is delta theta by 2. So t plus delta t into cos delta theta by 2, and this is sine. This is t plus delta t sine delta theta by 2. Okay, that is sine delta theta by 2. And this is t. If it is delta theta by 2, this plus this 90, this is delta theta by 2. So this is cos delta theta by 2, and this is sine delta theta by 2. Okay, and this is the normal reactions dN. This is the normal reaction dN. Okay, exerted by the pulley on the rope. Pulley on the rope. So this is normal reaction, and it is counterbalanced by this plus this, and this are different. So there must be some frictional force in the leftward direction, because friction opposes the relative motions between the two object or two contact surface. So you can write t plus delta t into sine delta into cos delta theta by 2 minus t cos delta theta by 2 equals to friction equals to mu into dN. That's the concept. Okay, and dN means this plus this. So dN means t plus delta t sine delta theta by 2 plus t sine delta theta by 2. That is dN. Okay, so you get the normal reaction, so you get friction, because friction equals to mu dN. And again, this is the Newton's second law. This is the rightward force, this is the leftward force. If we subtract these two forces, and that is counterbalanced by friction, and friction is nothing but mu into normal reaction. So mu into dN, and dN is normal reaction for the delta L part, and that is normal reaction is produced due to these two forces. So dN equal to this plus this. And here another concept is that here delta theta tends to 0. So from the geometry, as delta theta tends to 0, you know sin theta tends to theta, and cos theta tends to 1, and tan theta tends to theta. It is coming from limit theory. Okay, you know limit in calculus. Okay, you read limit, differentiation calculus, function, limit, continuity, differentiability in your mathematics. So you already know that from the limit concept, theta tends to 0, then sin theta equals to theta, and tan theta equals to theta, and cos theta equals to 1. So now here, sin delta theta by 2 equals to delta theta by 2. Okay, you can write it, or cos delta theta by 2 equals to 1. You can write this. Okay. So if you write this is delta theta by 2, and this is also delta theta by 2. Okay, and if you write this 1 and 1, so mu into dN, and here t plus delta t minus t. So there t plus delta t minus t equal to mu dN. dN means this. So t plus delta t into delta theta by 2 plus t into delta theta by
2. That's a force minus this equals to friction. Friction equals to mu n and N equals to this. Okay? So now Tt cancel, that is delta T. Okay? So delta T, delta theta, very little, very much little term. Okay? So mu into T delta theta by 2 plus T delta theta by 2. Wait. Here delta theta is negligible. Why is that? Because delta T tends to 0, again delta theta tends to 0. If we take the product delta theta into delta, that should be tends to 0. I do not, no need to take it. That's like 0.2 into 0.2. Suppose 0.2 into 0.2 मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है 0.04 मिलता है, मतलब और भी छोटा हो गया। इसलिए जब दोनों स्मॉल टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी और भी छोटा हो जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन ये वाला हो गया क्वेश्चन डेल्टा टी इक्वल्स टू म्यू टी इंटू डेल्टा थीटा। देखो आप ये इक्वेशंस आ ये डेल्टा टी मतलब डिफरेंशियल कंसेप्ट एलिमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको डिफरेंशियल थीटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देंगे तो एक फैंटास्टिक फार्मूला तुम्हारे पास आ ही जाएगा। वही हम तुमको यहाँ पर दिखाएंगे। सो इसको ऐसे dt लगा दो और इसको ऐसे t लगा दो, और यहाँ पर जो है म्यू और इसको डी थीटा लगा दो, तो इसको इंडिकेट कर देना चाहिए, ठीक है। अब पहले और दूसरा देखो T1 टू T2 ऐसे लगा दो, और ये 0 टू थीटा भी हो सकती है, तो ln T2 बाई T1 इक्वल्स टू म्यू थीटा, सो T2 इक्वल्स टू T1 e टू दी पावर म्यू थीटा। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, T2 इक्वल्स टू T1 इंटू ई टू की पावर म्यू थीटा। अब थीटा जैसे होगा, थीटा कितना रेंज का से, एक पुली में जब हम इसको रोप लगाएंगे ना, जब पुली में जैसे पुली में ऐसे पुली में जब रोप हम इसको लेते हैं ना, रोप ऐसे रोप लेते हैं, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल का रेंज कितना होगा, पाई। सो यू कैन अप्लाई 0 टू थीटा, थीटा इक्वल्स टू पाई, मे बी यू कैन अप्लाई। सो ये म्यू पाई हो जाएगा, यस सर। ये म्यू थीटा था, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं T2 इक्वल्स टू T1 इंटू दी पावर म्यू पाई, यस। दोनों टेंशन का ऐसा ही कुछ रिलेशन हमारे पास आ ही जाएगा। और जो टेंशन और जो एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है, जो न्यूटन का फॉर्मूला होता है क्या, m1, वो जो मास है m1 और m2, और जो टेंशन T1 T2 है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ हम अप्लाई करते हैं तो क्या लगाता है m2g माइनस, अगर m2 नीचे आ रहा है T2 ऊपर है तो क्या लगाता है m2g माइनस T2 इक्वल्स टू m2a, और इधर क्या लगाता है, या T1 माइनस m1g इक्वल्स टू m1, ऐसे लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर T2 इक्वल्स टू T1 इंटू दी म्यू पाई, और T2 इक्वल्स टू T1 इंटू म्यू इंटू दी म्यू थीटा। ऐसे फंक्शन में तो आ ही गया, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका जो टेंशन होगा उसका मास से इक्वल होगा, मतलब T1 इक्वल्स टू m1g और T2 इक्वल्स टू m2g, ऐसा होना चाहिए। सो T1 और T2 का और एक वैल्यू तुम्हारे पास आ ही जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा, और जब एक्सीलरेशन होगा तो न्यूटन का जो हम लोग लगाते हैं, जो जनरल प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन, जो जेईवेन का प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, जैसे टेंशन इन द टू बॉडी सिस्टम विद ए पुली, पहले ही बोला T इक्वल टू क्या होता था 2m1 इंटू g बाई m1 प्लस m2, ऐसे कुछ होता था ना। तो वहाँ पर कैसे आता था, कैसे आएगा इक्वेशन हम निकालते कैसे, पहले न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं m2g माइनस, जैसे तुम तो जानते हो जो हम बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारा पास तो अंदर है ही, तो हम फिर से एक बार बोल देते, ऐसे कुछ करके हम ले आते हैं। इक्विलिब्रियम में होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो तुमको ऐसे लगाते हो, ऐसे m1 और इसका m2 है, और ये जो पुली है स्टेबलिंग है, तो इधर जो हम T2 लगाते हैं ये T1, अगर T1 इक्वल्स टू क्या होगा m1 इक्विलिब्रियम, और T2 इक्वल्स टू क्या होगा m2g, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा ना, इक्विलिब्रियम। और नहीं होगा तो अगर ये एक्सीलरेशन में नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो क्या होगा बताओ,
m2g माइनस t2 इक्वल्स टू क्या m2a और t1 माइनस m1g इक्वल्स टू क्या m1a। ऐसे हो जाएगा कंसेप्ट। ये भी तो होता है ना, ठीक है। वही हम बोल रहे थे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ और नहीं इक्विलिब्रियम में ऐसा लगाओ। तो t1 बाई t2 का तो यहाँ पर रेशियो मिल ही गया, यू e टू द पावर म्यू थीटा, और वहाँ पर t2 बाई t1 का वैल्यू m2 बाई m1, तो दोनों का रेशियो आ गया एक्सपोनेंशियल रेशियो, ठीक है। ये था एक फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, क्योंकि यहाँ पर टेंशन हम डिफर कर रहे थे। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, फ्रिक्शन को यूज़ किया, फ्रिक्शन को अच्छी तरह से यूज़ किया। हाँ, इस फ्रिक्शन को यूज़ करेंगे तो अच्छा अच्छा टर्म तो आएगा और टेंशन का रिलेशन भी चेंज होगा। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत सारे बुक में तुमको मिल ही जाएगा, इरोडोप में तो मिलेगा। एक प्रॉब्लम है शायद इरोडोप का इस तरह से। और अभी भी तो जो भी पैटर्न आ रहा है, क्वेश्चन पैटर्न JEE मेन और एडवांस में आ रहा है, तो आएगा ही। अब पुली सिस्टम आएगा तो पुली में फ्रिक्शन रहेगा ही, और टेंशन का जो रिलेशन हो एक्सपोनेंशियल, उसको तो तुमको लेना ही पड़ेगा। अभी जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका हिसाब से आएगा। जो बैकडेटेड हो गया वो पहले, अभी फ्रिक्शन नहीं था वो बैकडेटेड 10 साल पहले का बात हो गया। अभी 2025 से जो स्टार्ट होगा तो यही स्टार्ट होगा, मतलब 6 से 6, 7, 27, 20, 29, 30 ऐसे 10 साल अभी चलेगा इसको लेकर, ठीक है। तो 10 साल के लिए तो अभी छुट्टी है तुम्हारा पास एकदम। और एक देखो फैंटास्टिक, 10 मिनट लग जाएगा शायद, कितना होगा। और एक देखा था, एक सुंदर एक प्रॉब्लम न्यूटन का, जैसे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे कंसेप्ट है न्यूटन में, लेकिन पहले फ्रिक्शन का प्रॉब्लम दिखा रहे थे हम। जब ये बॉडी लेते हैं ना ये, और यहाँ पर जो फिक्स फोर्स अप्लाई करता है, और यहाँ पर जो थीटा लेते हैं, ये अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी टू मूव इट, इसको मूव करने के लिए, ठीक है। पहले इसको हम ठीक सिखाएंगे, इसका जो थ्योरी निकल के आएगा ना, वही हम उसको अप्लाई करेंगे हमारा एक स्पेशल न्यूमेरिकल में। तो पहले हम इसको थ्योरी तुमको समझा देंगे। यहाँ पर जब हम फोर्स लेंगे, इसका मिनिमम हम इसको फोर्स को निकालेंगे, तब ये थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ये थीटा जो होता है ना, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ इक्वल होगा, मतलब ये थीटा इक्वल्स टू लैम्डा होगा। ये लैम्डा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ क्या, फ्रिक्शन, ये इसको कहते हैं। ये होना चाहिए, अगर ये होगा तभी वो मिनिमम होगा, नहीं तो हम प्रूव कर देते हैं तुमको, ऐसे ही मानना नहीं चाहिए, प्रूव तो चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम f cos थीटा ले लेंगे ना, तो इधर में f sin थीटा ले लेंगे। ये तो फ्रिक्शन है, हमने बता दिया, तो इधर तो फ्रिक्शन है, इधर mg भी है, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी है, और इधर फ्रिक्शन भी है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमको मिल ही जाएगा, mg माइनस f sin थीटा, ठीक है, मिल ही जाएगा। और ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू n, तो अब क्या मिलेगा, f cos थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया, ma। ऐसे हम लगा सकते हैं ma। अगर ये जो फोर्स है ये मिनिमम होगा, तब तुम्हें जो ये मिलेगा, ये शुड भी 0 होना चाहिए। अगर फोर्स मिनिमम होगा तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि फोर्स का जो मिनिमम इफेक्ट है तो तुम कैसे फिजिकली अपियरेंस करोगे, और ये सोचो, यही सोचने का बात है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। इस तरह का कंसेप्ट होता है वर्क पॉइंट में, जैसे बोलते हैं ना वेरी स्लोली पुल्ड, ये जो फ्रेज है ना वेरी स्लोली पुल्ड, ये भी रहता है कभी कभी। तो इस यहाँ पर भी क्या लेते हैं हम, एक्सीलरेशन को 0 लेते हैं, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या ना, f cos थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन, इसको ले लेंगे यहाँ पर, और ये जो n है ना यहाँ, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है बेटा, म्यू इंटू n। तो हम आई किया ना नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, ऐसे हम यहाँ पर ले लेंगे। तो f cos थीटा का वैल्यू हम ले लेंगे म्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा, ऐसे ले लेंगे। अब देखो f जो है ना उसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, और इधर म्यू mg लेते हैं, यहाँ पर म्यू mg लेंगे, और यहाँ पर cos थीटा, ये जो है cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ऐसे लेंगे तो f का वैल्यू। अब इसी f का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा डिनोमिनेटर में आ गया वेरिएबल, और न्यूमरेटर में तो कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि म्यू mg का भी ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट,
इसको हम कुछ नहीं कर सकेंगे, इसको मिनिमम बनाने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कैसे हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जैसे देखो cos थीटा प्लस म्यू साइन, तो आप इसको dl बाई डी थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा और प्लस म्यू cos थीटा, और इसको जीरो कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू म्यू आ गया ना, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। इस थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, इसीलिए हम बोला था ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही होना चाहिए। तो ये कंडीशन तुम्हारा पास आई है। तब एक मिनिमम कैसे होगा, ये मिनिमम का वैल्यू भी आप निकाल लेना, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू यहाँ पर बिठा दो तो आ ही जाएगा, क्योंकि tan थीटा अगर म्यू हो गया, tan थीटा अगर म्यू मतलब म्यू 1, तो ये क्या होगा म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बेस बाय है, साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय है, तो ये हो गया म्यू mg, cos थीटा का वैल्यू 1 बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1, और इसका वैल्यू आ गया म्यू बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू और क्या है म्यू साइन का म्यू स्क्वायर, सो ये मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा, एलसीएम कर दो वहां पर एक कट जाएगा तो म्यू mg डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आ गया एक मिनिमम का वैल्यू। इसको लेके ये हमारा कंसेप्ट आ गया, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और न्यूटन का और भी अच्छी तरह प्रॉब्लम हम दिखाएंगे। अभी तो आज टाइम नहीं है, आज का तो वीडियो यहाँ पर ही हमको समाप्त करना पड़ेगा। मेरा वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो और शेयर कर दो, और भी मुझे मोटिवेटेड मिल जाएगा। अच्छा प्रॉब्लम अभी आ रहा है, इतना आएगा तुम ले नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे इतना देना है कि हम दे नहीं पाएंगे, इतना है, ठीक है। मेरा ज़िंदगी इतना छोटा है, हम इतना तुमको दे नहीं पाएंगे, मेरा पास इतना कुछ है, ओके।